صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وقع تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم آتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمر بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية،
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزينة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساس الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة سلوى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. आज रुखसत हो रही है उनसे ज़हरा यारी। आज रुखसत हो रही है उनसे ज़हरा यारी। असलियाँ तोड़ी गई के से ये बतलाऊंगी मैं हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं।
ज़ैनब ये मुझसे देख कर चेहरा मेरा, आपके रुखसार पर ये नील है कैसा पड़ा। मैंने खाया है तमाचा मत बताना यारी, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा यारी। ओ मुसीबत आपने अच्छा हुआ देखा नहीं, अब मैं सीधी हाथ से तस्बीह पढ़ सकती नहीं। ऐसा पुन पुज़ने है मारा ताज़ियाना यारी, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा यारी। ताज़ियाने की अज़ियत का उठाना एक तरफ, वो तमाचे कत्ले मोहसिन दर जलाना एक तरफ। सबसे मुश्किल था मगर दर बार जाना यारी, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा यारी। चाहे आ जाए क़यामत मुझसे ये वादा करो, जब तलक मौला मेरे शबीर की मर्जी न हो, तब तलक मेरा जनाजा मत उठाना यारी, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा यारी। जब से आई हूँ पलट कर फिक्र है मुझको यही, मैं तो पर्दे में गई फिर भी ज़ईफ़ा हो गई। मेरी दरबार है ज़ैनब को जाना यारी, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा यारी, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा यारी। बज़हूर आका इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चराग़े खुदा का उजाला मोहम्मद, चराग़े खुदा का उजाला मोहम्मद, चराग़े खुदा का उजाला मोहम्मद। ये मजलिस तुम्हारे हवाले मोहम्मद, ये मजलिस तुम्हारे
चार इमाम चारदा मासूमीन की अजमत पर, बीबी सहरा की अजमत पर आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल वक्त का इमाम फरजहम। हम सबका पुरसा कबूल करे। वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए, उनकी सलामती के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। इमाम असर की सलामती के लिए और शहजादी की अजमतों पर बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन हबीबिना व हबीबि इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-ग़ुररिल मयामीन ला सियमा बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल ख़लाइक़ अजमईन सय्यिदना व मौलाना व साहिब निअमतना व वली असरना महदी हादिहिल उम्मा व ताऊस अहलिल जन्ना अल-हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी फ़िदाहु अर्वाहुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनान हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। सल्लल्लाहु अलैहि या बिन्त रसूलिल्लाह अय्यतुहल बतूल या बज़अतर रसूल अय्यतुहत तक़िय्यतुन नक़िय्यह अर्रदिय्यतल मरदिय्यह हबीबतल मुस्तफ़ा क़रीनतल मुर्तज़ा सय्यदतन निसा मुबश्शिरतल औलिया या तुफ़ाहतल फ़िरदौस वल ख़ुल्द या फ़ातिमतज़ ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल
या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकी बैन यदै हाजातना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या वजीहतन इश्फ़ई लना इंदल्लाह। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ुरआनिहिल मजीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो। अज़ादारान मोहतरम कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए वाहिद व यक्ता के लिए जिसने इस कायनात को मबूस फरमाया और उन पंजतन पाक के वास्ते से उन्हें मबूस फरमाया जिनके अनवार को उसने सबसे पहले खल्क़ फरमाया। लेकिन जब उनका भी तारुफ़ करवाना चाहा तो उस मुअज़्ज़मा उस मख़दूम कौनैन के ज़रिए से करवाया। जब उसने जिब्राईल का जवाब देते हुए फरमाया हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजो। अज़ीज़ारान मोहतरम, ये अय्याम फ़ातिमिया अपने इख्तिताम को पहुँच चुके हैं, लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि जिस आयत को सरनामे कलाम बनाया ये वो आयत है जिसमें खुदावंद आलम ने अपने हबीब को हुक्म दिया कि तुम अजर रिसालत तलब करो, उम्मत से कहो कि वो तुम्हारा अजर अदा करें। और इन अय्याम से बेहतर कौन से अय्याम हो सकते हैं जब रसूलुल्लाह के उस कार्य रिसालत का अजर हम उन्हें अदा करें। इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत अय्याम कोई हो नहीं सकते जब हम इस अजर को अदा कर सकें। इंसानी ज़िंदगी में अगर हम देखते हैं तो कई ऐसे मौक़े आते हैं जहां हम खुदावंद आलम को उसके हबीब की मेहनतों और मशक्क़तों का अजर लौटाने की कोशिश करते हैं। यकीनन हम वो हक़ अदा नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम ये वो अय्याम होते हैं जिसमें रसूल ज़रूर बज़रूर आपके इस आने से खुश होते हैं, जहाँ जनाब सैयदा अपनी इकलौती दुख्तर के ज़िक्र से खुश हो जाते हैं। उनका दिल शाद हो जाता है कि मेरी उम्मत में कोई तो है जिसने मेरी दुख्तर गिरामी की कदर की है, जो मेरे दुख्तर की मंजिलत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मारिफत तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अज़ीज़ारान मोहतरम, रसूल खुदा ने अपनी इस दुख्तर गिरामी के लिए फरमाया अहब्बुन्नासे इलैया फ़ातिमा, अअज़्ज़ुन्नासे इलैया फ़ातिमा। क्या फरमा रहे हैं रसूल कि तमाम लोगों में महबूब तरीन शख्स जो मेरे नज़दीक है वो है फ़ातिमा, जो सबसे ज़्यादा मुझे अजीज़ है लोगों में वो है फ़ातिमा। और कौन फरमा रहा है? कुल्ले अक्ल कुल्ले इल्म, जिसका इल्म कमाल पर है, जिसका हिल्म कमाल पर है, जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो अल्लाह का मुंतखब है, जो अफजलुल मखलूक़ात है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रिसालत माब फरमा रहे हैं कि लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब मुझे सैयदा है। अक़रबुन्नास इलैया फ़ातिमा, करीब तरीन तमाम लोगों में जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा है, सबसे करीब मेरे लिए फ़ातिमा। ये हबीब खुदा हमसे फरमा रहे हैं। आज कौन मासूम होगा, कौन इमाम होगा जो अपने सजदों में, अपने क़ुनूत में आपको ना याद करता होगा, आपको यानी आप अज़ादारों को याद न रखता होगा। इसलिए कि अगर हम बक़ी में पहुंच जाते हैं तो उम्मुस सादिक़ीन फ़ातिमा
अगर हम करबला पहुँचते हैं तो उम्मुल हुसैन फ़ातिमा, अगर हम काज़िमैन पहुँचते हैं तो उम्मुल काज़िमैन फ़ातिमा, अगर हम मशहद पहुँचते हैं तो उम्मुल रज़ा फ़ातिमा, और अगर हम वक्त के इमाम का तज़किरा कहते हैं तो कहते हैं उम्मुल महदी फ़ातिमतु ज़हरा सय्यदतु निअमल हसब वन नसब। सलावत वक्त का इमाम अपनी दुआओं में आपको शामिल करता है। जी अज़ादारान मोहतरम, आपको मोहतरमा सिराज बानो आपा, इसलिए कि वक्त का इमाम क्या यहाँ देखकर आपको इन मजालिस में शिरकत करते हुए देखकर ये ना कहता होगा रहमल्लाह 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 सिराज बानो, रहमल्लाह रूबी, रहमल्लाह इतरत ज़हरा, रहमल्लाह शमा, इन सब के एक एक के नाम लेता होगा। और मुझ जैसे हकीर का भी शायद इमाम नाम ले लेता हो अपनी दुआओं में, कम से कम ये मेरी जद्दा का जिक्र तो कर, रहमल्लाह ज़हरा, ए परवरदिगार इनके ऊपर अपनी रहमत को नाजिल फरमा। और क्यों वक्त का इमाम आपको याद कर रहा है? इसलिए कि आपने यहाँ पर शिरकत करके उनकी जद्दा के किए हुए सलाम का जवाब दिया है। जब बीबी शहादत के बहुत करीब थी और जब उन्होंने वसीयतें करना शुरू की तो एक मर्तबा अबुल हसन से कहती हैं, फरमाती हैं, या अबुल हसन या अली वक़रा अन्निस्सलाम इला वुल्दी इला यौमिल क़ियामा, ए अबुल हसन यौम क़यामत तक, रोज़े क़यामत तक जो मेरी औलाद है उसको मेरा सलाम कह देना। ये आपका इन मजालिस अज़ा में शिरकत करना उस सलाम का जवाब है। बीबी, हम इसमें शिरकत करके आपके सलाम का जवाब दे रहे हैं। और क्यों ना हो आपकी हस्ती इतनी बुलंद, आपका मकाम इतना बुलंद, इसलिए कि ये वो अय्याम है जहाँ आप अपने कुल वजूद में महजून होते हैं, मग़मूम होते हैं। आप एहसास करते हैं कि रसूल खुदा ने कितनी मेहनतें की, कितनी मशक्क़तें उठाई, कितनी अज़ियतें सही, कितनी तकलीफ़ें उन्होंने, कितने मसाइब व आलाम को झेला है ताकि आप तक अपनी इस दुख्तरे गिरामी की मंजिलत को पेश कर सके। और कितनी खूबसूरत हदीस नबी करीम से हम तक पहुँची है कि जहाँ वो फरमाते हैं हरामुन अला रूह तुफारिक़ु जसदहा हत्ता तरल खम्सा। क्या फरमा रहे नबी करीम? नबी करीम फरमा रहे हैं कि इस रूह पर हराम है कि वो अपने जिस्म से जुदा हो जाए, यानी तब तक मौत नहीं आ सकती हत्ता तरल खम्सा, जब तक कि वो 5 की ज़ियारत न कर ले। मोहम्मद व अली व फातिमा व हसन व हुसैना बेहैसो तक़र्रु ऐना, यानी जब तक ये आंखें ठंडी ना हो जाएंगी उनकी ज़ियारत से, तब तक वो इन 5 की ज़ियारत करते रहेंगे। सलावत इमाम ज़माना हम सबको जैसा चाहते हैं परवरदिगारा, वक्त के इमाम के सदके, बीबी ज़हरा के सदके हम सबको ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे परवरदिगारा, सिले रहमी करने की तौफीक दे। आवाज़े बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ज़दाराने मोहतरम, ये फ़ातिमा है कौन? फ़ातिमा वो है जिसने मज़हब तशय्यो की बुनियाद डाली। और ये बुनियाद जब बीबी ने डाली है तो जो भी बीबी से नाराज़ होता है, इस मज़हब से नाराज़ होता है या हमसे नाराज़ होता है, तो वो उससे नाराज़ होता है जिसके लिए रसूल खुदा ने फरमाया कि इसकी नाराज़गी खुदावंद आलम से नाराज़ होने के मुतरादिफ है और उसे दोज़ख में रसीद कर दिया जाएगा, से दोज़ख में डाल दिया है, क्योंकि ये वाहिद हस्ती है जिसके लिए रसूल खुदा ने फरमाया था इन्नल्लाह यग़ज़िबु बिग़ज़बि फ़ातिमा व यरदा बिरदाहा। अल्लाह ताला फ़ातिमा के गज़बनाक होने से खुद मग़ज़ूब हो जाता है और फ़ातिमा की मर्ज़ी में, उसके राज़ी होने में उसकी रज़ा पोशीदा है। कैसे बुनियाद डाली बीबी ने? बीबी ने बुनियाद 2 काम करके डाली है मज़हब तशय्यो की। एक, मौलाए कायनात की विलायत का दिफा करके,
बीबी फरमाती रही, मैं अपने ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा सह लूँगी, मैं कोड़े खा लूँगी, मैं तलवार का दस्ता अपने ऊपर बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अली मैं तुम्हें बाहर न जाने दूँगी, मैं तुम्हें इनके हवाले न करूँगी। तुम्हारी गर्दन में रस्सी होगी, मैं अपने आप को तुम्हारी अबा के दामन से मुतमस्सिक कर लूँगी, मैं घसीटती चली जाऊँगी जबकि हामिला हूँ, लेकिन अली मैं उनके हवाले तुम्हें न होंगी। विलायत का दिफा करके, और दूसरा फदक का मुतालबा करके, अपने हक़ का मुतालबा करके। इसलिए ये दोनों के ताल्लुकात हैं। अगर एक विलायत का दिफा अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है तो फदक का मुतालबा अमल से ताल्लुक़ रखता है। एक का ताल्लुक़ सदाक़त से है, दूसरे का ताल्लुक़ अमानत से है। बीबी ने इस तरह से मजहब तशय्यो की बुनियाद डाली है। बीबी दरबार में गई हैं और मर्दों के दरमियान, ना कि मस्तूरात के दरमियान, मर्दों के दरमियान, नामहरम मर्दों के दरमियान, गासिबों के दरमियान, हुकूमतों के दरमियान खड़े होकर बीबी ने फरमाया, एलमु अन्नी फातिमा, जान लो मैं फातिमा। आयतुल्लाह मुर्तज़ा अस्करी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ये एक जुमला, तन्हा जुमला काफ़ी है हम पर ये फ़र्ज़ करने के लिए कि हम जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की मारिफत हासिल करें, उनको पहचानने की कोशिश करें। जब भी हम कोई तहरीर लिखें, जब भी हम कोई तकरीर करें, जब भी हम कोई खिताबत करें, उसमें जनाब फ़ातिमा का ज़िक्र ज़रूर करें। उन तहरीरों को, तकरीरों को, खिताबत को जनाब फ़ातिमा के ज़िक्र से महरूम न करें। जब भी हम कोई मजलिस में आए, जब भी हम कोई बज़्म सजाएं, तो उन मजलिसों को, जब कोई मस्जिद कायम करे, जब कोई इमाम बारगाह बनाए, जब कोई हुसैनिया बनाए, जो बनाए हम उसे फ़ातिमतुज़ ज़हरा के नामों से मंसूब कर दें, ताकि इस बीबी का नाम एक चौदहवीं के चाँद की तरह हमेशा ता क़यामत चमकता रहे। ये बज़्म हो, मेज़बान फ़र्श अज़ा हो, गमगुसारान हुसैन हो, और ए लमु अन्नी फ़ातिमा, फ़ातिमा का ज़िक्र। एक सलावत भेजने मोहम्मद और किस लिए कि नबी का दुश्मन कहीं पर भी पाया जा सकता है। कोई भी नबी का दुश्मन हो सकता है। नबी के दुश्मन से ला ताल्लुकी रखने वाले भी कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। इसी तरह से इमामों के दुश्मनों से ला ताल्लुकी रखने वाले भी किसी भी खैमे में पाए जा सकते हैं। लेकिन फातिमा के दुश्मन से ला ताल्लुकी रखने वाला कभी मजहब तशय्यो से नफ़रत नहीं कर सकता, कभी इस मजहब के मानने वालों से नफ़रत नहीं कर सकता। कराची के एक शायर हैं, सागर तकवी नाम है। सागर तकवी साहब वो अपना एक तजुर्बा बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं कसाई की दुकान पर गया और वहाँ मैं गोश्त ख़रीद रहा था। इतने में उस कसाई ने मुझसे सवाल किया, आपका बाज़ मुसलमानों से क्या झगड़ा है? वो कहते हैं हमारा कोई झगड़ा नहीं है। कहते हैं तो फिर आप किस बात पर उनसे इख्तलाफ रखते हैं? वो कहते हैं इस बात पर कि नबी की इकलौती बेटी थी, उसका एक बाग था जिसका नाम फदक था, वो उससे छीन लिया गया, गस्ब कर लिया गया। वो दरबार में अपना हक मांगने गई, उसे हक ना दिया गया। इतने में वहाँ पर कुछ और लोग दुकान पर आए गोश्त खरीदने के लिए, और वो कसाई ने उनसे सवाल किया कि तुम लोगों का इनसे क्या झगड़ा है? वो कहते हैं हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है। कहते हैं कि किस बात पर इख्तलाफ है? ये अभी अभी मुझे बता रहे थे कि नबी की बेटी थी, दरबार गई अपना हक मांगने के लिए और उसे उसका हक नहीं मिला। क्या ये सही है? वो लोग कहते हैं कि हाँ, नबी की बेटी दरबार गई थी, उसे हक नहीं दिया गया। उसने कहा क्यों नहीं दिया गया? वो कहते हैं वो उसका हक नहीं था, उसका हक बनता नहीं था। एक मर्तबा वो कसाई रूखे अल्फाज से इन्हें मुखातिब करके कहता है कि नबी की बिटिया थी, हक नहीं भी बनता था तो भी दे देते। ये फातिमा है जिसकी बदौलत जो है मजहब तशय्यो की तरफ खिंचते चले आते हैं। बीबी ज़हरा के दुश्मनों पर, उनको झुटलाने वालों पर, माँ में फिदा छीनने वालों पर, उनको तमाचा
नारे हैदरी, नबी ज़हरा के अस्मतों पर बाबा से बुलंद तरीन सलवात। मैंने आपसे कहा ना कि आप इमाम की दुआ में शामिल हैं। आज वक्त का इमाम क्या इस मजलिस में हाजिर ना होगा? क्या इस मजलिस को देख ना रहा होगा? इसकी निगाहें इस मजलिस अज़ा पर ना होंगी कि यहाँ पर कौन उनकी जद्दाह के गासिबों पर लानत कर रहा है, कौन उनकी जद्दाह पर सलवात भिजवा रहा है, कौन उनके कसीदों में नारे लगवा रहा है। यकीनन इमाम की नज़रें इस मजलिस अज़ा पर होंगी। अज़ादारान मोहतरम, आज हमने अय्याम अज़ा यानी मुहर्रम के दिनों का, मुहर्रम के अय्याम का इतना इंतज़ाम किया, इतने ज़ोर व शोर से हमने इन अय्याम को मनाया कि आज कोई भी अपने आप को एलानिया तौर पर, चाहे यजीद का चाहने वाला हो, लेकिन एलानिया तौर पर कोई ये ना कहेगा कि मैं यजीदी हूँ, मैं यजीद का चाहने वाला हूँ। क्यों ये नतीजा हुआ? इसलिए कि इतना एहतमाम किया गया, इतना एहतमाम किया अय्याम अज़ा का, मुहर्रम के अय्याम का, कि हर एक यजीद की असलियत से वाकिफ हो गया, हर एक यजीद की असलियत को पहचान गया। लिहाजा उलमा ने इस बात की ताकीद की कि इन अय्याम फातिमिया को जब 75 दिन की रवायत से लेकर 95 दिन की रवायत तक इस तरह से अय्याम फातिमिया को मनाओ कि एक रोज वो आए जब कातिलाने बिनते रसूल, कातिलाने मोहसिन के चेहरे से नकाब उलट दी जाए और लोग उन्हें पहचान कर शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि हम फला फला के मानने वाले हैं, ये फला फला हमारे खुलफा हैं। इस तरह से अपना मकाम हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर हम जनाब सैयदा के मानने वाले, जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल का जिक्र करने वाले, उनके मसाइब का जिक्र करने वाले, रसूलुल्लाह हमें ये मकाम दे रहे हैं कि जब तक तुम फातिमा को न देख लोगे, जब तक तुम्हारी आंखें ठंडी न हो जाएंगी, तब तक तुम उनकी ज़ियारत करते रहोगे। रसूलुल्लाह ने एक हदीस फरमाई अपने दुख्तर गिरामी के सिलसिले में, अव्वलु मा युल्हिक़ु बी मिन अहले बैती फातिमा, सबसे पहले जो मुझसे आकर मुल्हक हो जाएगा, जो मुझसे आकर जन्नतों में मुलाकात करेगा मेरी अहले बैत में से, वो फातिमा है। ज़रा इस जुमले पर गौर करने की कोशिश कीजिए। हबीब खुदा किस मकाम पर हैं? सबसे अव्वल जन्नत में जाने वाले हबीब खुदा उस मकाम पर जहाँ वो काबा कौसैन व अदना के फासले पर अल्लाह से कलाम कर रहे थे। अर्श पर अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा कलाम करने के लिए। जहाँ जिब्राइल को खदशा हुआ कि मेरे पर जल जाएंगे, वहाँ रसूलुल्लाह के कदम पहुँच गए, वहाँ उनके कदम मुबारक पहुँच गए। ये रसूल अपनी दुख्तर गिरामी के सिलसिले में फरमा रहा है कि सबसे पहले मुझसे आकर मुलाकात करेंगी वो फातिमा है। ज़रा गौर कीजिए, तमाम अंबिया, तमाम मासूमीन में कोई रसूल से सबसे पहले मुलाकात नहीं करेगा, लेकिन उनके मेवा कल्ब आकर सबसे पहले मुलाकात करें। अंबिया और मासूमीन की उम्रें जो रही वो काफ़ी तूलानी रही। कई अंबिया कई अरसे ज़िंदा रहे। हज़रत नूह 2500 साल उन्होंने इस दुनिया में अपनी हयात तैयबा को गुजारा है। 2500 साल का मतलब समझते हैं? 2500 साल यानी 2500 साल इस्मत के साल गुजारे। मासूम थे, इस्मत के साल 2500 इस्मत के साल गुजारे। 2500 साल मेहनत और मशक्क़तों और मसाइब और आलाम के साल गुजारे। और इसी बिना पर उनके मनाक़िब भी तो ज़्यादा हुए, उनके फ़ज़ाइल भी तो ज़्यादा हुए। दीगर अंबिया रहे, हज़रत ईसा आज तक ज़िंदा हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम अंबिया और मासूमीन में रसूल खुदा क्या फरमा रहे? मेरे मकाम पर कौन आएगा सबसे पहले? मेरी मंजिलत पर ज़हरा आएंगी, फातिमा आएंगी। तो सवाल उठता है ना कि उतने उनके साल, उनकी इबादतें और फातिमा 18 साल कैसे बराबरी हो सकती है? तो आज़ादारान मोहतरम, हर चीज़ को जब तोला जाता है, उसका वज़न किया जाता है, तो 2 तरीक़े होते हैं वज़न करने के। एक तादाद की बिना पर, अगर आप तादाद की बिना पर देखें तो यकीनन हज़रत नूह के 2500 साल कहाँ और जनाब फ़ातिमा के 18 साल कहाँ।
लेकिन कभी कभी चीज़ें अपनी कैफियत की बिना पर भारी पड़ जाती हैं, कैफियत की बिना पर ज़्यादा वज़नी हो जाती हैं। अक्सर ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत छोटी होती हैं लेकिन बहुत कीमती हो जाती हैं। आपने हीरे को देखा है, डायमंड को देखा है, एक इतना सा हीरा होगा वो करोड़ों पर भारी पड़ जाएगा। इतनी नायाब ये शख्सियत है जनाब फातिमतुज़ ज़हरा की कि इनकी 2 रकत नमाज अंबिया की हज़ारों सालों की नमाज से बेहतर मलिका है ज़हरा, ज़हरा के शौहर कौनैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा के शौहर जन्नत की हाजत रखते हो तो कहते जाओ हसनैन की मादर है ज़हरा, ज़हरा के शौहर जन्नत के मेवे खाने हैं तो कहते जाओ आलम सलामत रखे, नारा लगाने वालों को, नारा लगवाने वालों को और बीबी की अज़मतों पर सलावात भेजने वालों को। जनाब सैयदा वो जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर अली जैसा ना होता तो सैयदा का कोई कुफ ना होता। मिन आदम व मन दूने ही, ना आदम ना उनसे लेकर रोज़े क़यामत तक कोई। अगर अली की बराबरी सैयदा से की जा रही है तो ये बराबरी किस बिना पर है? अगर बनु हाशिम की बिना पर है कि बनु हाशिम के ख़ानदान से मौलाए कायनात थे, तो बनु हाशिम में तो और भी चचाजाद थे रसूल के, अकील भी थे, जाफ़र भी थे, हमज़ा भी थे, लेकिन कोई सैयदा की बराबरी में नहीं, कोई सैयदा का कुफ बनने के लायक नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मौलाए कायनात कुफ के लायक। क्यों? क्योंकि ये ईमान और अमल पर दारोमदार रखा जा रहा है, ये कोई हसब और नसब नहीं, क्योंकि रोज़े क़यामत भी तमाम हसब और नसब और तमाम रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। और यहाँ पर भी जब सैयदा की बराबरी की जा रही है तो इस बिना पर कि ये तो देखो कि उनमें ईमान कितना है, तवक्कुल कितना है, खुलूस कितना है, इसलिए कि ये वो अली हैं कि जब जंग के लिए जा रहे हैं तो रसूल खुदा फरमा रहे हैं बरज़ल ईमान कुल्लुहु अलल कुफ्र कुल्ले, कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहे हैं। जब जंग खंदक में अपना ज़रबत का वार, जब अपनी तलवार का वार किया, एक ज़रबत लगाई है तो रसूल खुदा फरमा रहे हैं ज़रबतु अली फ़ी यौमिल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सक़लैन, यानी तमाम सक़लैन जिन्नो इंसान की इबादत से बेहतर ये एक ज़रबत है। अगर अली की इबादत कि ये कैफियत है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बिना पर है कि उनका ईमान खुदावंदे आलम पर कितना, उनका तवक्कुल खुदावंदे आलम पर कितना। बस वो अली अगर ये कह दे कि मैंने फ़ातिमा को अपना इबादतों में बेहतरीन मददगार पाया, बेहतरीन मुअय्यन पाया, तो ये सिर्फ उस तवक्कुल की बिना पर है, सिर्फ उस ईमान की बिना पर है जो सैयदा में पाया जाता था। इसलिए कि ज़रा गौर कीजिए कि सैयदा की इबादतों में कोई फ़र्क न आया। हम जो हैं जब हालात बदलते हैं तो हमारी कैफियतें बदलती हैं, हमारे रवैये बदलते हैं। जब गम का दौर होता है तो इबादतें भी बेहतरीन होती हैं, गिड़गिड़ा कर परवरदिगार से सवाल भी करते हैं, और जब खुशी आती है तो कभी कभी अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना भूल जाते हैं, कभी अल्लाह के सामने सजदे में गिरना भूल जाते हैं, कभी नमाज़ों को क़ज़ा कर देते हैं। लेकिन जनाब सैयदा को देखिए, दरवाज़ा गिरने से पहले जिस तरह की इबादत थी वही इबादतें दरवाज़ा गिरने के बाद भी हो रही हैं। इबादतों की कैफियत न बदली, रवैया न बदला। जिस जोश व खरोश के साथ जनाब सैयदा अपने परवरदिगार की इबादतों में मशगूल रहा करती थी दरवाज़े के गिरने से कबल, उसी जोश व खरोश के साथ दरवाज़ा गिरने के बाद भी वही इबादतें चल रही हैं। उसी तरह से अली की खिदमत भी हो रही है, उसी तरह से बच्चों की खिदमत भी हो रही है, उसी तरह से जनाब फ़िज़्ज़ा को आराम के दिन भी मिल रहे हैं। ये है जनाब सैयदा की कैफियत, ये है जनाब सैयदा की अज़मत, उस बीबी की अज़मत जिसने जब रात में अगर अली ने उसको बेहतरीन अपना मददगार पाया तो किस बिना पर पाया?
कि सजदे इतनी तूलानी करिए। खुद सैयदा थी जिन्होंने हजरत मौलाए कायनात को उनसे ये दरख्वास्त की है, अली क्या बेहतर ना होगा कि हम आज की रात परवरदिगार की इबादत में सजदों में रहकर गुजार दें। जो सैयदा का मौला है वो सैयदा के हुक्म की तामील करते हुए उसके साथ सारी रात इबादतों में गुजार रहा है, सारी रात इबादतों में गुजार, अपनी सजदों को तूलानी कर रही है जनाब सैयदा। कई मरतबा हमसे भी कहा गया जब नमाज में तो अपने सजदों को तूल दो, अपने सजदों को तूलानी करो। कई मरतबा ऐसा होता है कि जब हम सजदे में जाते हैं हमें हमारी समझ में नहीं आता कि हम सजदे में गए, आखिर कहें तो क्या कहें, कौन सा जुमला कहें। यानी ये नमाज की सजदों, वाजिब नमाज की सजदों की बात नहीं हो रही है। अक्सर कई मरतबा हमसे कहा सजदे शुक्र में चले जाओ, ऐसे सजदा कर लो अल्लाह का, मुस्तहब नमाजों में सजदा करो तो क्या दुआ करो उसमें। ये जनाब सैयदा ने हमें बताया। कुर्बान जाएं हम इन हस्तियों पर कि अगर इन्होंने हमें ये दुआएं न तालीम की होती तो हमारी समझ में नहीं आता हम अल्लाह से इबादत किस तरह से करें, किस तरह से दुआ करें, किस तरह से मांगे, किस तरह से उसका शुक्र अदा करें। जनाब सैयदा के लिए मिलता है उनके 3 जुमले दुआ के, दुआएं अलग अलग हैं, जुमले मैंने एक एक जुमला लिया है तीनों दुआओं में से। जहाँ पर बीबी सैयदा जो है जब सजदे में जाती थी तो उनको उनकी कनीज़ों ने सुना कि बीबी क्या फरमा रही हैं सजदे में बीबी फरमा रही हैं अल्लाहुम्मा क़न्नअनी अला मा रज़क़तनी, ऐ परवरदिगार जिस चीज़ पर तूने मुझे रिज़्क़ दिया है उस चीज़ पर मुझे क़नाअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये जुमला। ऐ परवरदिगार तूने हमें कैसे ख़ानदान में पैदा कर दिया, तूने हमें कैसे माँ बाप दे दिए, तूने हमें कैसा शौहर दे दिया, तूने हमें कैसी औलाद दी, ऐसी नाफरमान औलाद, किस मुसीबत के साथ हम ज़िंदगी गुजारी। लेकिन बीबी हमें समझा रही है जो मिल गया, जो अल्लाह ने रिज़्क़ दे दिया, जैसे वालिदैन, जैसा शौहर, जैसी औलाद, उस पे अल्लाह का शुक्र करो, क़नाअत का जज्बा रखो उसके ऊपर कि अल्लाह का रिज़्क़ है ये तुम्हारे लिए, उस रिज़्क़ पर राज़ी हो जाओ। अगर तुम राज़ी हो जाओगे तो मैं राज़ी होती हूँ, मैं राज़ी हो गई तो खुदावंद आलम राज़ी होगा। उसके बाद बीवी दूसरा जुमला दुआ में फरमाती हैं ऐ परवरदिगार जिस चीज़ को तूने मेरे लिए करार दे दिया है, मेरी ज़िंदगी में करार दे दिया है, मुझे उसमें मशगूल न कर। यानी कि हम जो है ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागे जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में ऑलरेडी लिखी हुई है कि तुम्हें ये चीज़ें मिलनी है। कई मर्तबा हम जो है और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में और बेहतरीन, कई लोग जो हैं जब हम सफ़र अपना तलाश करते हैं तो उसमें ये आया, ये अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हमें उम्मीद है हमें इससे बेहतर मिल जाएगा। उस बेहतर की तलाश में लोग अपने आप को इतना मशगूल कर देते हैं। बीबी फरमा रही है कि मुझे उसमें मशगूल ना कर, बल्कि मुझे उसके लिए मशगूल कर दे जिसके लिए तूने मुझे खल्क फरमाया है। और अल्लाह ने हमें किस लिए खल्क फरमाया है? सूरह ज़ारियात में खुदावंद आलम फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए मैंने तुम्हें खल्क फरमाया है, दीगर चीज़ों में मशगूल ना हो जाओ। और फिर उसके बाद बीबी फरमाती हैं ऐ परवरदिगार मुझे फारिग कर दे ताकि मैं तन्हा तेरी तरफ जो है अपनी रग़बत कर सकूं। यानी क्या फरमा रही बीबी, आज के ज़माने में हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है। आज का ज़माना जहाँ हर तरफ इफ़रात ही इफ़रात है चीज़ों की, यहाँ जा रहे हैं तो ये बाज़ार, वहाँ जा रहे हैं तो वो बाज़ार, यहाँ मॉल लगा हुआ है, वहाँ मॉल लगा हुआ है, हमारी नज़रें चकाचौंध हो रही हैं दुनिया को देखकर। हम अगर कुछ नहीं कर रहे तो व्हाट्सएप में, स्नैपचैट में, फेसबुक में, ये सब तमाम सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं और कहते हैं कि हमें इबादत के लिए फरागत नहीं मिल रही, हम फारिग नहीं हो पा रहे हैं अल्लाह के इबादत के लिए। बीवी हमें दर्स दे रही हैं ऐ परवरदिगार मुझे फारिग कर दे दुनिया की मशगूलियतों से, दुनिया के शुगल से, ताकि मैं तेरी इबादत में फ़ोकस कर सकूं, तेरी इबादत की तरफ रग़बत कर सकूं। अज़ादारान मोहतरम, ये वो बीवी जिसने हमें कई दर्स दिए, ये वो बीवी जिसके लिए रसालत माब फरमाया करते थे कि अगर हुस्न किसी एक शख्स में जमा कर दिया जाता, अगर हुस्न
किसी एक शख्स की सूरत में, उसकी शक्ल में तुम्हारे सामने होता तो वो फातिमा की शक्ल इख्तियार कर लेता। इसलिए कि तमाम अहले अर्ज़ में सबसे बेहतरीन मेरी दुख्तर फातिमा है। उनसुरं व शरफ़ं व करमा, यानी उनसुर में भी फातिमा जो है सबसे जमील, सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, शरफ़ में भी सबसे खूबसूरत, करम में भी सबसे खूबसूरत। आपने गौर नहीं किया रसूलुल्लाह की इस हदीस के ऊपर? रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अगर तमाम तर हुस्न को जमा कर दिया जाता एक शख्स में, ये कोई ऐसे वैसे हुस्न की बात नहीं कर रहे हैं रसूल खुदा। रसूल खुदा जब बात करते हैं तो अल्लाह को मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं, यानी अल्लाह वो है जो हुस्न का इख्तियार रखता है, अल्लाह वो है जो सबसे हसीन है। रसूल खुदा फरमाए अगर अल्लाह का जमाल देखना हो तो मेरी दुख्तर फातिमा को देख लो, उसी में सारा अल्लाह का जमाल नजर आ जाएगा। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। बस इज़्ज़तदारान मोहतरम, एक जुमला और मैं रब्ते मसायब हूँ। आयतुल्लाह खुनसरी से ये सवाल किया गया कि आपको किस बात पर उम्मीद है, किस बात पर तवक्को है कि ये आपके बख्शिश का सामान कर देगी, ये आपको बीबी की शफाअत नसीब कर देगी। तो उन्होंने ये न कहा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इल्म हासिल करने में, इल्म देने में, अमल करने में लगा दी, इतनी किताबें मैंने लिखी, इतने फतवे मैंने जो है वो ज़ाहिर किए और उनको जो है लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन उन्होंने ये ना कहा कि मेरी फ़लाँ किताब, मेरे फ़लाँ जो मैंने फ़ज़ाइल दर्ज किए मासूमीन के, उन्होंने कहा तमाम मेरी ज़हमतें एक तरफ, बीबी पर बहाए गए ये आंसू एक, मुझे इन आंसुओं पर उम्मीद है कि ये मेरी बख्शिश का सामान है, इसलिए कि मैंने उस मुअज़्ज़मा पर बहाए गए हैं जिस पर वो रोया जो कभी किसी मुसीबत पर न रोया, वो रोया, उसने गिरिया किया जिसने बद्र उहद में जाकर जंग की लेकिन उसने कभी शिकायत न की, जिसने जंगे खैबर में खैबर को उखाड़ा लेकिन उसने कभी उसके वज़न की शिकायत न की, जो खंदक में गया और मुशरिकीन और मुनाफिकीन से वो जंग करता रहा लेकिन उसने कभी शिकायत न की, इबादत के मकाम पर नमाज की हालत में उसके कदमों से तीर निकाला गया लेकिन वो न रोया, उसने गिरिया न किया। लेकिन जब रोया तो कब रोया? जब ये खबर मिली कि बाबा आज अम्मा हमसे रुखसत हो गई, बाबा आज हम यतीम हो गए। ये वो अली जो कि रसूल खुदा की कब्र पर जब आए हैं ना, जब जनाब सैयदा को कब्र के तहत उनके हवाले कर रहे थे तो रसूल खुदा से एक मर्तबा ये जुमला कहा, अल्लत अन सफियतिका सबरी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आपकी सफिया, आपकी चहेती, आपकी हबीबा के जाने से मेरा सब्र का दामन टूटता चला जा रहा है, मेरा सब्र खत्म होता चला जा रहा है। आज हम इस बीबी पर गिरिया करते हैं। ये वो अली है जो हमसे फरमाया करता था कि जन्नत से एक फूल खुदावंद आलम ने हम तक नाजिल किया था, इसका सब एहतराम किया करते थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा इसका एहतराम करते, अली मुर्तज़ा, हसन और हुसैन इसका एहतराम करते थे। लेकिन इस उम्मत ने उस फूल की खुशबू इस दुनिया में रहने न दी और उसे हमसे छीन कर, उसे तोड़
कर उसे जन्नत की तरफ वापस पलटा दिया। खुदावंद आलम आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। ये आवाज़ें जो बीवी के गम में बुलंद होती है, ये आंसू जो बीवी के गम में आपकी आंखों से निकलते हैं। अज़ादारान मोहतरम, आज उलमा कहते हैं कि जब भी आप जनाब सैयदा पर आंसू बहाते हैं और मसाइब को सुनने के बाद, इन गमों पर रोने के बाद, गिरिया करने के बाद आप जब दीगर मासूमीन की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, मशहद में जाते हैं तो इमाम रज़ा की अलग कैफियत होती है, जब बक़ी में जाते हैं तो सादिक़ैन की अलग कैफियत होती है, जब काज़िमैन में जाते हैं तो दोनों इमामों की अलग कैफियत होती है। हर एक जब आपको देखता है तो मुख्तलिफ निगाह से देखता है। ये मेरे माँ पे रोने वाली अज़ादार, ये मेरे माँ के गम में रोने वाली, और आपको दुआएं देते हैं। आज़ादारान मोहतरम, जब 28 सफर करीब थे और रसूलुल्लाह बिस्तर मर्ज़ पर थे, कई मरतबा गश खाते थे। एक मरतबा जब आँख खुली तो क्या देखा कि सैयदा बार बार दरवाजे पर जाती हैं और फिर दरवाज़ा बंद करके चली आती हैं। एक मरतबा कहा है, मेरे लाल तुम दरवाजे पर क्यों जाती हो, कौन दरवाजे पर दस्तक देता है? बीबी फरमाती है, बाबा मुझे नहीं मालूम, कोई बार बार आता है। मैं उससे कहती हूँ कि अभी अभी मेरे बाबा आराम फरमा रहे हैं, तू वापस चला जा, लेकिन जाने कौन है बार बार चला आता है। रसूल फरमाते हैं, ए मेरी दुख्तर, क्या तुमने उसे देखा? वो कौन है? बीबी कहती है, बाबा मुझे नहीं मालूम, मैंने उसके चेहरे को नहीं देखा। रसूल फरमाते हैं, जानती है मेरे लाल ये कौन है? ये मलकुल मौत है। और जानती है आप इसे वापस जाने के लिए कहती हैं तो ये चला क्यों जाता है? बीबी कहती है, नहीं जानती बाबा। रसूल फरमाते हैं, ए मेरी क़ल्ब जिगर है, मेरे मेवा क़ल्ब, ए मेरे लख्ते जिगर, आपके एहतराम में आप उसे वापस जाने के लिए कहती हैं, आपसे कुछ नहीं कहता। ये वो है जिसे कभी किसी नबी के रूह कब्ज़ करने के लिए किसी घर में दाखिल होने के लिए इजाजत की जरूरत न पड़ी, लेकिन आपसे इजाजत तलब कर रहा है। ऐ सैयदा, इसे इजाजत दे दें। अज़ादारान मुहतरम, रसूल के लिए मिलता है जब से आयत तत्हीर नाजिल हुई थी, मुख्तलिफ रावी लिखते हैं, कोई 1 महीना, कोई 3 महीना, कोई 7 महीने, कोई 9 महीने। कहते हैं कि रसूल खुदा दाहिने हाथ पर सलमान, बाएं हाथ पर अबू ज़र को लेकर सुबह सवेरे नमाज फज्र से पहले अहले बैत के दर पर आया करते थे और दर पर आकर अपनी उंगलियों का इशारा करके सलाम किया करते थे। अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा व मादनर रसाला व मुख्तलिफल मलाइका इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। किसी ने पलटकर रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हम जानते हैं ये आपके अहले बैत का घर है, लेकिन ये इशारे से सलाम करना क्यों? रसूल पलटकर कहीं ये जवाब न दे, ए नादान, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कल को कोई यहाँ आग और लकड़ियाँ लेकर न जमा हो जाए। इस दरवाजे को पहचान लो, ये मेरे अहले बैत का दरवाजा है, यहाँ पर मलाइका नाजिल होते हैं, ये दरे रिसालत है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बीबी खुद अपने रुमाल में अपने आप के आंसुओं को जगह इनायत फरमाया, अजरकुम अलल्लाह जअलल्लाहु मिनल बाकीन, आपको रोने वालों में शुमार फरमाया। आज हम यतीम हो गए, आज हमारी माँ हमसे जुदा हो गई। रसूल खुदा ने कहा था, अलवैल कुल्लुल वैल लिज़लमकी, अरे जो तुम पर जुल्म करेगा उसके लिए वैल
असवद से एक रिवायत नक़ल की जाती है। आप सब जानते हैं ना कि बीबी के जनाजे में 7 अहले बैत को शुमार किया जाए, बनु हाशिम को शुमार किया जाए तो 14 अफराद नजर। काश कि मैं परवरदिगार से काश कि आज जितनी मस्तूरात यहाँ पर हाजिर है उतने ही लोग बीबी के जनाजे में शिरकत कर रहे होते। जनाब बगदाद कहते हैं कि जब फातिमा इस दुनिया से गई है, जब बिन्ते रसूल इस दुनिया से गई है, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि उनकी कमर से, उनकी पहलों से खून जारी था। जाने किस तरह का ज़र्ब मारा था सैयदा पर कि 75 दिन के बाद, 95 दिन के बाद भी जनाब सैयदा के पहलू और कमर से खून बह रहा था। एक मर्तबा जनाब सैयदा एक ज़ाकिर अहले बैत के ख्वाब में आती है और कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मजलिस में शिरकत करूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जिक्र में, तुम्हारी बज़्म में शिरकत करूं, तो मेरे रुखसत के मसाइब ज़रूर पढ़ना, मेरे रुखसत के मसाइब ज़रूर लोगों को बताना, लोगों को बताना कि जब ज़हरा का आखिरी वक्त था तो ज़हरा अपनी नजरों को अली से छुपा रही थी कि कहीं ज़हरा की खून आलूदा आंखें अली न देख ले। जब ज़हरा की रुखसत और रहलत और जुदाई का वक्त आया तो ज़हरा अपनी नजरों को झुकाए हुए थी कि कहीं अली जो है ज़हरा के पहलू को न बदल कर उनके शिकस्ता पहलू को न देख ले, कहीं अली उनके ऊपर उस सियाह निशान को न देख ले जो उनके रुखसार पर था, जो उनके कांधों पर वार किया हुआ निशान पड़ा हुआ था। आज़ादारान मोहतरम, जनाब फातिमा अपने परवरदिगार को महबूब हो गई। अली ने बच्चों को अपने भाई अकील के घर भेजा। देखो आहिस्ता रोना, इसलिए कि तुम्हारी माँ की वसीयत थी, कई लोगों को खबर ना हो जाए। कायनात की शहजादी और उसके जनाजे में उसके अपने बच्चों के रोने पर पाबंदी लगाई जा रही। अली ने हौसला दिया, हौसले देते देते चीख मारी। जनाब अस्मा ने कहा, मौला अब तक तो बच्चों को खामोश करा रहे थे और अब दहाड़े मार कर, चीखे मार कर रो रहे हैं। मौला फरमाते अस्मा, मैं क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त न हुआ। जब मैंने सैयदा का पहलू बदला तो उस तलवार के वार के निशान को देखा जो आज तक सैयदा ने मुझसे छुपाया। दोस्त लोग कफन ले चुके, जनाजा तैयार हुआ, बच्चों को बुलाया, आओ बच्चों अपनी माँ से रुखसत कर लो। मैंने तमाम मसाइब को छोड़ा, आप मुसलसल 2 दिनों से मसाइब को सुनते आए हैं। एक मर्तबा जनाजा घर से बाहर निकला, मौलाए कायनात इन 7 या 14 अफराद के साथ जनाजे को लेकर आगे बढ़ने लगे। जनाजा आगे बढ़ता था, कुछ देर बाद मौला ने कहा कि जनाजे को रोक दो, ठहर जाओ। इमाम हसन से कहा, ए मेरे लाल हसन, मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही है, जरा देखो तो पीछे कौन चला आ रहा है। मौला फरमाते हैं, बाबा कोई और नहीं, बुर्का पहनकर मेरी बहन ज़ैनब चली आ रही है। मौला फरमाते हैं, हसन जाओ, ज़ैनब को घर छोड़कर वापस आओ। मैं कहूँगी मौला रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, मदीना रसूले खुदा का शहर है, बाप का साया है, भाइयों का साथ है। अरे 5 साल की ज़ैनब है, ज़ैनब को आ जाने दे मौला। अरे
लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून। बारे इलाहा, तुझे तेरे पाक और क़ुद्दूस नामों का वास्ता, तुझे तेरे इसमें आज़म का वास्ता, तेरे ख़ास नाम अल्लाह का वास्ता। परवरदिगार, तुझे फ़ातिमतुज़ ज़हरा उनके शिकस्ता पहलू का वास्ता। बारे इलाहा, तुझे फ़ातिमा की उस निदा का वास्ता जो दरबार में खड़े होकर उन्होंने अपने आखिरी फ़र्जंद को याद किया और पुकारा, या महदी, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताकि वो आकर तमाम मज़लूमीन का खुसूसन अपने जद और जद्दाह के नाहक बहाए गए खून का इंतकाम ले सके। इस गैबत के दौर में तमाम हम गम व आलाम को वक्त के इमाम से दरगुजर फरमा। इस गैबत के दौर में हम सब को ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाहा, जो भी बीमार और मरीज़ है, खुसूसन जो कोविड की वबा के शिकार है, उन्हें सैयद सज्जाद की सदक़े में शिफ़ाए कामिला आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार, हमसे जो गुनाह सरज़द हो गए हैं, शहज़ादी कौनैन की मोहब्बत में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार, जो हमने तेरे बारगाह में तेरी खिदमत में नाक़िस टूटे फूटे अदना से अमाल और इबादतें पेश की हैं और ये मजालिस अज़ा जो तेरी बारगाह में पेश की गई हैं, इन सब को शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। परवरदिगार, इस कोविड की वबा को हमारे दरमियान से दफ़ा कर जो हम पर रास्ते बंद हो चुके हैं हज ज़ियारत मासूमीन के, दोबारा उन रास्तों को खोल दे। हम सब को वक्त के इमाम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमा, उनके ज़ुहूर का ज़माना देखना नसीब फरमा। हम सब को उनके चाहने वालों में, उनके मुंतज़रीन में, उनकी कनीज़ों में, हत्ता कि उनके शियों में जगह अता फरमा। परवरदिगार, जो भी रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, उन्हें हलाल वसी और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत और वसाअत अता फरमा। परवरदिगार, हम सब को इस दुनिया में और आखिरत में नुमाया कामयाबी और कामरानी अता फरमा। और हम सब को परवरदिगार जनाब शहज़ादी कौनैन के सामने रोज़े क़यामत सुरखरू फरमा, उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। बारे इलाहा, तुझे हसनैन और ज़ैनब व उम्मे कुलसूम की यतीमी का वास्ता, हमारे वालिदैन के साए को हम पर बनाए रखना, उनकी उम्र दराज फरमा, उन्हें सेहत बख्शना, और जिनके वालिदैन मरहूम हो चुके हैं उनकी क़ब्रों पर अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह।